Hello students, hope you all are doing good. Today we are doing a chapter named Natural Resources about land, soil, water, natural vegetation and wildlife. What we are going to read in this chapter about the land resources, soil resources, water resources, biodiversity, disturbances in natural ecosystem, wildlife in India, forest conservation, about the land use, soil erosion and conservation of water resources, ecosystem, conservation of ecosystem and depletion of wildlife, about a case study, land degradation, conservation of soil, natural vegetation and wildlife resources, wildlife and resources and significance of forests and wildlife. We satisfy our needs by consuming the resources available in our natural environment. जो भी हमारे natural environment में जो substances या resources available हैं उन्हीं से हम अपनी need पूरी करते हैं. जितने भी resources हैं they are obtained from other parts of the world too, and land, rivers, plants, animals, soil, forests, etc. are elements of natural environments. Their utility depends on the needs and desire of the people living in the region. वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनके लिए कैसे वो substances resource का काम करते हैं वो totally उनके need पर और उनके use पर depend करता है. The resources have no value unless man uses these gifts of nature. That is, these gifts become resources only when man starts using them. जब ह्यूमन बीइंग को ये सब्सटेंसेस यूज़ करने आए हैं तभी ये जो नेचुरल गिफ्ट्स हैं जो हमें नेचर से मिले हैं वो एक रिसोर्सेज की फॉर्म में आ पाए हैं. जब ह्यूमन बीइंग को उन्हें यूज़ करना नहीं आता था तो वो सिर्फ क्या थे, एक सब्सटेंसेस थे. नाउ व्हाट आर लैंड रिसोर्सेज? लैंड जो है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स बिकॉज ह्यूमन बींग्स ऑब्टेन मोस्ट ऑफ देयर नीड्स फ्रॉम इट. लैंड जो है डिफरेंट पर्पस के लिए ह्यूमन बींग यूज़ करते हैं. अ पीस ऑफ लैंड विच इज़ वेरी फर्टाइल इज़ यूज फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप एंड अ पीस ऑफ लैंड विच कंटेन मिनरल्स इज़ यूज फॉर माइनिंग. जहाँ लोकेशन की जो लैंड होती है वो कैसी है उसी के अकॉर्डिंग नीड पर डिपेंड करता है. फॉर एग्जांपल कोई लैंड जो है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है तो उसे एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करना फ़ायदे में रहेगा. और अगर कोई लैंड जहाँ पर मिनरल्स अवेलेबल है वहाँ पर माइनिंग हो सकती है. लैंड कवर जो है तो 29% ऑफ द टोटल अर्थ सरफेस पे है एंड ऑल पार्ट्स ऑफ दिस परसेंटेजेस आर नॉट हैबिटेबल. यानी हर एक जगह जो 29% अर्थ पे 29% लैंड है वो क्या सारी जगह रहने लायक है? नो, हर जगह रहने के लिए सूटेबल नहीं है. सम पार्ट्स ऑफ लैंड हैव हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वेयर एज सम आर स्कैर्सली पॉपुलेटेड. द रग टोपोग्राफी, steep slopes of the mountains, low-lying areas susceptible to waterlogging, deserts areas, thick forested areas are normally sparsely populated or uninhabited. Plains and river valleys offer suitable land for agriculture. Hence, these are the densely populated areas of the world. जहाँ पर बहुत ज़्यादा माउंटेन स्लोप्स हैं या बहुत सारा लो लाइंग एरिया है जहाँ पर फ्लड आ जाती है, पानी इकट्ठा हो जाता है, या फिर जहाँ पर थिक फॉरेस्ट है वहाँ पर रहना बहुत मुश्किल होता है और वहाँ पर बहुत कम ही लोग रहते हैं. और अगर कोई लैंड जैसे कि प्लेन लैंड है या फिर रिवर वैलीज़ हैं वहाँ की जो लैंड है वो बहुत फर्टाइल होती है, एग्रीकल्चर के लिए बहुत सूटेबल होती है, तो वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन मिलेगी. नाउ व्हाट इज़ लैंड यूज़? The surface of the land is not uniform in height or appearance over large areas. Surface of land जो है वो क्या है? Uneven है, एक जैसा वो नहीं है. इसीलिए mountains, plateaus and plains are the major landforms on the continents. Landforms not only vary in size and shape
From place to place, they also change with the passage of time. Sudden changes are brought about by earthquake or volcanic eruptions or floods. Gradual changes take place continuously and affect large areas. इस तरीके से जो लैंड है अर्थ सरफेस की वो क्या होती रहती है, टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है बिकॉज ऑफ द वॉल्केनिक इरप्शंस, अर्थक्वेक एंड सो अदर. Now what are the factors that affect the land use? First is physical features. Physical features जैसे कि माउंटेन है या फिर प्लेट्यू है, रिवर्स, स्लोप ऑफ द लैंड एटसेट्रा दैट इन्फ्लुएंस फॉरेस्ट कवर, ह्यूमन हैबिटेशन एंड हैंस पुट अ लिमिट ऑन लैंड यूज. उससे हमें पता लगता है अकॉर्डिंग टू फिजिकल फीचर ऑफ द लैंड कि वहाँ पर कैसे एग्रीकल्चर करनी है, माइनिंग करनी है, कैसे लोगों को रहना है और कैसे वो ह्यूमन हैबिटेशन के लिए सूटेबल है. सेकंड है टाइप्स ऑफ रॉक्स. Types of rocks like sedimentary, igneous and metamorphic rocks affect availability of minerals and soils etc. in an area. Soils are also made from weathering or breakdown of rocks. Therefore, rocks influence the type and degree of land use. किस टाइप की रॉक है वहाँ पर, किस जो सॉइल है वो किस टाइप की रॉक से बनी है, सेडिमेंट्री से है, इग्नियस से है, मेटामॉर्फिक रॉक से बनी है, कैसे वहाँ पर मिनरल फाइंड आउट होते हैं, उससे भी काफ़ी कुछ फ़र्क पड़ता है कि किस टाइप की लैंड जो है वो किस यूज़ में आ सकती है. नेक्स्ट इज स्लोप. Humans have generally preferred gentle slopes for habitation as well as agriculture. स्टीप स्लोप्स जो हैं वो अनफेवरेबल होते हैं, वहाँ एग्रीकल्चर भी नहीं हो सकती, घरों की जो कंस्ट्रक्शन है वो भी अवेलेबल नहीं होती. फर्दर ऑन स्टीप स्लोप सॉइल इरोजन अकर्स रैपिडली. जो स्टीप स्लोप्स होते हैं वहाँ पर सॉइल इरोड भी बहुत जल्दी होता है, इसीलिए जो जेंटल स्लोप्स होते हैं वहीं पर लोग हैबिटेशन के लिए लैंड को चूज करते हैं. नेक्स्ट इज क्लाइमेट. Climate is an important factor determining land use. अगर क्लाइमेट अच्छा होगा तो वहाँ पर रहने वाले लोगों की, एनिमल, ह्यूमन बीइंग, प्लांट ग्रोथ वो अच्छी होगी. कोल्ड एरियाज ऑफ टुंड्रा रीजन और एक्सट्रीमली हॉट एंड एरिड climates of deserts are unsuitable for human habitation. Next is human needs. Human needs like construction of roads, railways, communication lines, land cultivation, overcoming climate barriers, economic well-being and technology also determine land use. People inhabit in less numbers in the snowbound areas of Siberia or deep inside the deserts like Sahara. यानी कि human need के according अगर road, railway या communication lines नहीं है या कल्टीवेशन के लिए लैंड बहुत कम है, बहुत सारे क्लाइमेट बैरियर्स हैं, वहाँ पर बहुत कम लैंड जो है वो यूज़ के लिए अवेलेबल होती है, बहुत कम लैंड यूज़ के लायक होती है. तो इसीलिए जो स्नो बाउंड एरियाज़ हैं या फिर डेजर्ट्स हैं वहाँ पर लोग कम रहते हैं. नेक्स्ट इज़ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी. Land can also be divided on the basis of private land and community land. Private land is owned by individuals, whereas community land is owned by the community for common use. यानी एक ग्रुप ने जो लैंड ऑन कर रखी हो, फॉर एग्जाम्पल कलेक्शन ऑफ फोडर, फ्रूट्स, नट्स एटसेट्रा. इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स. नेक्स्ट इज एरेबल लैंड्स. एरेबल लैंड कौन सी होती है? जो फर्टाइल लैंड होती है. लाइक fertile river valleys and plains are the most populated areas of the world because they are suited to agriculture. क्योंकि वहाँ पर एग्रीकल्चर करना बहुत आसान होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्रॉप ग्रो होती है, इसीलिए फर्टाइल रिवर वैलीज और प्लेन्स जो हैं वो मोस्ट पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड होते हैं. Over 66% of the world population is concentrated in the subtropical and mid-latitude zones. 50% of the world population lives in urban areas and this figure is expected to go up. These urban areas constantly need more land for settlement, infrastructure, industries, leisure activities, etc., which increase the pressure on land. As a result, more and more agriculture land is getting converted into urban colonies. क्योंकि जो अर्बनाइजेशन है वो बहुत जल्दी से हो रहा है, गांव के लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं और शहरों में उन लोगों के रहने के लिए जगह प्रोवाइड करना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना या इंडस्ट्रीज़ बनाना, लेजर एक्टिविटीज़
क्रिएट कराने के लिए लैंड पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जाता है, फॉरेस्ट एरिया को क्लियर किया जाता है, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की जाती है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अर्बन कॉलोनीज बन सकें. विद द फास्ट इंक्रीजिंग वर्ल्ड पॉपुलेशन स्पेशली इन एशिया एंड अफ्रीका, द प्रेशर ऑन लैंड इज इंक्रीजिंग वेरी रैपिडली. More forests and grasslands are getting converted to urban lands. Today, 76% of the food comes from croplands, 17% from pastures that sustain livestock for grazing, and 7% from fisheries. But 700 million people in the world do not have enough to eat because they are living below poverty line. They cannot afford to meet their basic need of food. लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे लोग जो हैं उनको अभी तक 2 टाइम का खाना भी प्रोवाइड नहीं हो पाता है क्योंकि वो पॉवर्टी लाइन से भी बिलो सर्वाइव कर रहे हैं. नेक्स्ट इज व्हाट इज लैंड डिग्रेडेशन. लैंड डिग्रेडेशन का मतलब होता है डिक्लाइन इन प्रोडक्टिविटी ऑफ कल्टिवेटेड लैंड. जैसे धरती का लैंड का उपजाऊपन जो है वो कम होने लगता है और वहाँ पर क्रॉप ग्रो की जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है. दैट इज कॉल्ड लैंड डिग्रेडेशन, यानी लैंड का डिग्रेड होना, लैंड की क्वालिटी का कम होना. जनरली लैंड डिग्रेडेशन रिजल्ट्स फ्रॉम unsuitable and unscientific land use. Overexploitation of land resources and concentration causes land degradation, landslide, soil erosion and desertification which are major threat to the environment. कुछ factor responsible हैं land degradation के, that is exploitation of land, deforestation यानी पेड़ों की कटाई, clearing fertile land for settlements, slashing and burning the trees फॉर एग्रीकल्चर, दैट इज झूम कल्टिवेशन जो कि पहाड़ों में की जाती है, एंड अबेंडन माइनिंग साइट्स एंड सरफेस माइनिंग, टॉक्सिसिटी इन द लैंडफिल, अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स एंड कंसर्टाइजेशन एटसेट्रा. ये कुछ फैक्टर्स हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ द लैंड. नाउ कंजर्वेशन ऑफ लैंड डिग्रेडेशन. कैसे लैंड की जो क्वालिटी है उसको डिग्रेड होने से हम बचा सकते हैं. फर्स्ट इज एफॉरेस्टेशन एंड कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग. ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा के और ओवर ग्रेजिंग को कंट्रोल में करके हम जो लैंड की क्वालिटी है वो डिग्रेड होने से बचा सकते हैं. सेकेंड इज प्लांटेशन ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स, यानी खेतों के चारों तरफ या कोस्टल एरियाज पर शेल्टर बेल्ट ऑफ प्लांट, पूरा एक बेल्ट प्लांट्स को ग्रो करके. Next is growing of thorny bushes to stabilize the sand dunes. थॉर्नी बुशेस हम ग्रो कर सकते हैं डेजर्ट में ताकि सैंड ड्यून जो है मूव करते रहते हैं और मूव ना करे, एक ही जगह पे स्टेबल हो जाएं. प्रॉपर डिस्चार्जेस एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स एंड वेस्ट. जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं उसका प्रॉपर डिस्पोजल किया जाए. नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल फ्रेंडली माइनिंग. माइनिंग को इस तरीके से किया जाए कि वो इन्वायरमेंट के लिए भी थ्रेट ना बने. इन कुछ फैक्टर्स का, कुछ स्टेप्स का हम यूज़ करके अपनी लैंड को डिग्रेड होने से बचा सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल रिसोर्सेज. सोइल क्या होता है? सोइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स एंड सोइल इज द मीडियम इन विच प्लांट्स ग्रो. हम अपना खाना कैसे खा पाते हैं? बिकॉज ऑफ द सोइल, क्योंकि सोइल में क्या ग्रो होते हैं? प्लांट्स ग्रो होते हैं. Plants provide food for all land creatures. Thus, all land creatures depend directly or indirectly on soil for food. अब सोइल बनती कैसे है? सोइल इज फॉर्म्ड बाय द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल चेंजेस दैट टेक प्लेस कॉन्टिन्यूसली इन द सोइल लेयर. सोइल फॉर्मेशन की 3 स्टेजेस हैं. फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? जो सोइल फॉर्मेशन बिगेन विद द ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स एट द सरफेस, और द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स उसको क्या कहते हैं? वेदरिंग. बिकॉज ऑफ द नेचुरल फैक्टर जो रॉक्स है वो छोटे छोटे सेडिमेंट में ब्रेक डाउन हो जाती है, एंड वेदरिंग में बी बाय मैकेनिकल और केमिकल मीन्स. सेकेंड स्टेज में क्या होता है? ड्यू टू
ड्यू टू वेदरिंग एन ऑर्गेनिक लेयर डेवलप्स, बैक्टीरिया और उसमें अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट करते हैं एंड रिमेन ऑफ द प्लांट एंड अदर ऑर्गेनिक मटेरियल वो मिक्स हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमस, और वो सेकेंड स्टेज बन जाती है। एंड द थर्ड स्टेज जो ह्यूमस है, यानी कि जो एनिमल और प्लांट डिके है, वो क्या करता है, ह्यूमस हेल्प्स लूज सॉइल ग्रेन्स टू स्टे टुगेदर एंड ऑल्सो मेक द सॉइल मोर फर्टाइल, ताकि जो सॉइल के ग्रैनुअल्स हैं यानी दानेदार सॉइल है वो स्टे टुगेदर, पास में रहे। तो ह्यूमस उसकी ह्यूमिडिटी, सॉइल की ह्यूमिडिटी मेंटेन करता है और सॉइल को और ज़्यादा फर्टाइल बनाता है। इस तरीके से सॉइल फॉर्मेशन होती है। नाउ come to, did you know? You know, it take hundreds of years for a centimeter of soil to be formed. 1 सेंटीमीटर soil बनने के लिए hundreds of year का time लग जाता है। Now, while soils are usually formed by weathering of rocks, it may also be formed by deposition of material by agents of gradation. Alluvial soils in river valleys and deltas are formed by this process. एक तो weathering से soil बनती है, दूसरा कैसे बनती है, deposition of material by agents of gradation। जैसे कि नदियों का जो पानी है वो अपने साथ मिट्टी बहा कर लेकर आती है, जिससे alluvial soil बनती है। ओके, तो डेल्टाज और रिवर वैलीज के पास जो soil होती है वो किस मेथड से बनती है, by the deposition of material by agents of gradation. Now next is factors affecting soil formation. Soil formation में कौन कौन से factor affect करते हैं? First is weathering. Weathering disintegrates the rock in situ and the agents of gradation carry this load over the large areas of the land. The color, structure, mineral content in soil is formed due to it. वेदरिंग क्या होती है? वेदरिंग होती है डिसइंटीग्रेट होना, रॉक का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना, और जो एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन होते हैं उसको अपने साथ बहा कर ले जाते हैं लार्ज लैंड ऑफ एरियाज में। इसीलिए जहाँ पर वो लेकर जाते हैं तो सॉइल का जो कलर है, स्ट्रक्चर है या टेक्सचर है, मिनरल कंटेंट इन सॉइल इज फॉर्म ड्यू टू इट। तो जहाँ जहाँ से वो टच में आता जाएगा, जिस जिस सरफेस के, उसी से जो मिट्टी है, लैंड है उसका, सॉइल है उसका टेक्सचर डेवलप होगा। नेक्स्ट इज क्लाइमेट। सॉइल फॉर्मेशन को क्लाइमेट कैसे अफेक्ट करता है? विदाउट क्लाइमेट वेदरिंग कैन नॉट टेक प्लेस। अगर क्लाइमेट नहीं होगा तो वेदरिंग प्रोसेस नहीं होगा। क्लाइमेट हैज़ डिफरेंट effects on different types of rocks. Though temperature and precipitation, it affects rate of weathering, decomposition of organic material, as well as the type and kind of vegetation in the area. Climate can be regarded as the most dominant factor in soil formation. अब climate अगर नहीं होगा तो क्या weathering नहीं होगी? weathering नहीं होगी तो soil formation नहीं होगी। क्यों? जैसे कि क्लाइमेट क्या होता है, कभी तेज गर्मी हो जाना, कभी बारिश हो जाना, कभी ठंड हो जाना। इसी के कारण जो रॉक की ऊपर वाली लेयर होती है वो वीक हो जाती है और वो वेदरिंग का प्रोसेस होता है। ओके, तो इस तरीके से क्लाइमेट सॉइल फॉर्मेशन को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट इज बायोटा और बायोमास। The decomposition of organic matter gives humus and bacteria to do the activity of mixing and shifting of soil materials. The decayed matter also increases chemical action and lends color and texture to soil. जो भी decayed matter होते हैं, humus होता है, जो भी organic matter gives humus and bacteria that give texture and color to the soil. Next is topography. Topography, it includes relief, slope, as well as the direction with respect to sunshine and winds. Gentle slopes favor soil formation while steep slopes lead to soil erosion. Topography यानी वहाँ की लैंड फॉर्म कैसी है। अगर जेंटल स्लोप होंगी तो वहाँ पर सॉइल फॉर्मेशन इजीली हो जाएगी, पानी जो है ग्रेडेशन के जो एजेंट है वो आगे चले जाएंगे और सॉइल बेड वहाँ बन जाएगा, तो सॉइल फॉर्मेशन इजीली हो जाएगी। लेकिन अगर स्टीप स्लोप है तो वहाँ से क्या होगा, सॉइल इरोजन होगा और सॉइल फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। नाउ डिड यू नो the soils of the world can be broadly classified into two groups based on the climatic condition of the regions they are found in. Pedal fours are soils
found in humid regions, while pedicels are soils found in semi-arid and subhumid region. Now, what is soil erosion? सॉइल इरोजन यानी सॉइल का इरोड होना, सॉइल का ऊपर की जो लेयर है उसका रिमूव होना. द टॉप सॉइल इज ऑलवेज एक्सपोज टू एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन, देयरफॉर रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर्स, सी वेव्स, currents etc. keep on removing soil particle and depositing them elsewhere. तो उनको रिमूव करने पे लगे रहते हैं और कहीं और जगह डिपॉजिट कर देते हैं. Normally there is a state of equilibrium between the rate of removal of soil from above and addition of soil from below. However, sometimes the rate of removal of top soil exceeds the rate of addition of fresh soil from below and the thickness of the soil layer starts decreasing. Such high rate of removal of soil is called soil erosion. जब इतनी ज़्यादा मात्रा में सॉइल जो है, टॉप सॉइल जो है वो रिमूव होने लगे कि उसकी जो ऊपर की लेयर है वो बिल्कुल भी दिखाई ना दे, बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाए, एंड दिस हाई रेट ऑफ रिमूवल ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन अलग अलग टाइप के होते हैं. फर्स्ट इज शीट इरोजन. शीट इरोजन क्या होता है? व्हेन अ शीट और लेयर ऑफ सॉइल इज रिमूव्ड ओवर अ लार्ज एरिया बाय रनिंग वाटर, बहता हुआ पानी, उसके कारण जब एक लार्ज एरिया की जो टॉप लेयर है वो रिमूव हो जाती है, दैट इज कॉल्ड शीट इरोजन. यानी पूरी की पूरी जो शीट है यानी पूरी ऊपर की जो लेयर है वो रिमूव हो जाना. नेक्स्ट इज गली इरोजन. Gully erosion, if the water flows regularly along a definite path down the slope, it cuts a channel called gully, and this type of erosion is called gully erosion. The land degraded by gully erosion is called bedland or ravine. Gully erosion आपने देखा होगा, जैसे जो माउंटेन्स होती हैं वहाँ पर पानी बहने का, वाटर फ्लो का एक फिक्स पाथ होता है, डेफिनेट पाथ होता है. तो वहाँ पर जो स्लोप्स हैं वहाँ पर क्या हो जाती है, जो पहाड़ है या माउंटेन है वो कट हो जाता है. दैट इज कॉल्ड गुली इरोजन. नेक्स्ट इज रिल इरोजन. If rills appear, they increase in number over a period of time. It is called rill erosion. ये देखो आप, ये है रिल इरोजन. जब बहुत सारी जगह से एक साथ जो सोइल है वो रिमूव हो जाती है एंड इट इंक्रीज इन नंबर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इट इज कॉल्ड अ रिल इरोजन. नाउ हाउ टू कंजर्व सोइल. कंजर्वेशन ऑफ सोइल. Soil is essential for the growth of plant. It is an important natural resource for the production of food and often crops is dependent on its fertility. Soil may be conserved by the following method. First is afforestation. ह्यूमन्स को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ ग्रो करने चाहिए. द ह्यूमस इन सॉइल इज अ सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल रिमेन्स. देयरफॉर प्लांटिंग ऑफ ट्री, शर्ब्स एंड ग्रासेस प्रोवाइड बेस फॉर फॉर्मिंग ह्यूमस. ह्यूमस जो है वो सॉइल में नमी बना के रखता है, सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको इंक्रीज करता है. इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट, ट्री और श्रब हैं, ग्रासेस हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करने चाहिए. नेक्स्ट इज फार्मिंग टेक्निक्स. Soil conservation friendly farming techniques include contour plowing, strip cropping, terracing and other techniques. Strip cropping का क्या मतलब होता है? Planting of alternative rows of different kind of crop instead of leaving the land fallow. अलग अलग टाइप की क्रॉप ग्रो करना. हाँ, लैंड को फैलो ना छोड़ के उस पर अलग अलग टाइप की लैंड ग्रो करना, दैट इज strip cropping. And in contour plowing, farmers plow across a slope along the line of the field in circular manner. एंड टेरेसिंग में क्या होता है, वाइड फ्लैट रोज बनाई जाती हैं, जैसे कि स्टेप सीढ़ियाँ होती हैं उस तरीके से खेती की जाती है और ईच स्टेप पे एक बाउंड्री बनाई जाती है ताकि वो रेन वाटर को होल्ड कर सके और जो मिट्टी है वहाँ से इरोड ना हो. तो अलग अलग फार्मिंग टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए ताकि सॉइल को हम कंजर्व कर सकें. नेक्स्ट इज मल्चिंग. Mulching is one of the simplest and most beneficial practices. Mulching is the practice of spreading a protective layer of material on top of the soil. This helps to retain moisture, reduce erosion, provide nutrients and suppress weed growth.
Mulches can either be organic. पूरी लेयर पर मल्चेस को फैला देना चाहिए ताकि वो क्या कर सकें, वहाँ मॉइस्चर को रिटेन कर सकें और सॉइल इरोजन को रिड्यूस कर सकें, न्यूट्रिएंट वहाँ की सॉइल में बने रहें। अलग अलग टाइप के मल्चेस को यूज़ कर सकते हैं जैसे कि ग्रास, स्ट्रो, बार्क पीसीज और इनऑर्गेनिक जैसे स्टोन, ब्रिक, पीस, प्लास्टिक। तो उससे जो ऊपर की लेयर है उसको ढक देते हैं ताकि उसकी फर्टिलिटी, उसका मॉइस्चर बना रहे। नेक्स्ट इज कॉन्टोर बैरियर्स। It is the using of stone, grass, soil to build barriers along contours. जो contour बने होते हैं, यानी आपने देखा होगा खेतों में क्यारियाँ बने होते हैं, उनके आसपास स्टोन, ग्रास और लगा देते हैं ताकि पानी के साथ सोइल इरोड ना हो। ओके, नेक्स्ट इज रॉक डैम। Rocks are piled up to slow down flow of water. It prevents gullies and further soil erosion. Rock dam बना दिए जाते हैं ताकि वो gullies और soil erosion से protect कर सकें। Next is intercropping. डिफरेंट क्रॉप्स जो हैं वो मिक्स करके ग्रो कर सकते हैं, अल्टरनेटिव रो में सो कर सकते हैं, बो सकते हैं उनको, एक लाइन में कोई और क्रॉप, दूसरी लाइन में कोई और क्रॉप। इस तरीके से इंटरक्रॉपिंग की जा सकती है टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश। नेक्स्ट इज शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट्स, trees are planted in rows in which a manner that they provide shelter from the wind and protect soil from the wind and protect soil from erosion. These are very commonly seen in coastal areas and dry region where strong winds dominate the weather. Shelter belt क्या होती है? खेतों के चारों तरफ या जहाँ से हवा या पानी ज़्यादा आता है वहाँ पे एक बेल्ट लगा दी जाती है प्लांट्स की, ताकि जो विंड है या वाटर है वो उनके फील्ड में एंटर ना करे और सॉइल को इरोड ना करे। ज़्यादातर आप ये देखोगे शेल्टर बेल्ट लगी होती हैं कोस्टल एरियाज़ पे, जो समुद्र का पानी है उनको खेतों में आने से जो शेल्टर बेल्ट है वो रोक लेती है। नेक्स्ट इज व्हाट आर वाटर रिसोर्सेज। Water is a vital renewable natural resource. 3/4 of the earth is covered by water और water के 2 types होते हैं, salt water and fresh water. The oceans occupy 2/3 of the earth's surface and support a rich variety of marine plants and animals. और ज़्यादातर जो सी वाटर है वो कैसा होता है? सलाइन वाटर होता है। द सैलिनिटी इन मैराइन वाटर्स मेक्स इट अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। क्या हम उसको ह्यूमन कंज्यूम कर सकता है? नो, बिकॉज ऑफ द सैलिनिटी, क्योंकि खारा पानी इतना होता है तो हम उसको कंज्यूम नहीं कर सकते। However, countries of the Middle East are using desalination plants to make marine waters fit for human consumption. लेकिन कुछ कंट्रीज़ हैं जो ऐसे प्लांट लगा रही हैं जिससे खारे पानी को, मतलब समुद्र के पानी से नमक को रिमूव कर सके और उन्हें फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन बना सके। नेक्स्ट इज व्हाट इज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। The 3 atmospheric process, evaporation, condensation and precipitation involved in the hydrological cycle cause water to be made available globally. For this reason, water is even called a renewable resource. पानी की जो साइकिल है, वाटर साइकिल, वो कंटिन्यूस चलती रहती है। दैट इज़ एवपोराइजेशन और उसके बाद कंडेंसेशन होती है, फिर प्रेसिपिटेशन होती है। तो दिस इज़ कॉल्ड वाटर साइकिल। और इसी वाटर साइकिल के कारण जो वाटर है वो एक रिन्यूएबल रिसोर्स बन पाया है। नाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इज एज फॉलोज। फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर कितना है? सिर्फ 1% टोटल वाटर में से फ्रेश वाटर अवेलेबल है हमारे पास। सेकेंड इज आइस कैप्स। Ice caps, total water made available on the earth in the process of hydrological cycle is 2% of this. 2% ice caps की फॉर्म में है and water in atmosphere that is 0.001%, जो water vapors की फॉर्म में हम atmosphere में देख सकते हैं। Next is water in oceans. About 97% of water is found in oceans, seas and salt water lakes. It covers about 71% of the earth's surface.
On the planet Earth, water is found in all three form, gaseous, liquid and solid form. तो इस तरीके से वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन है और हमारी अर्थ पर वाटर जो है तीनों फॉर्म्स में अवेलेबल है, जो कि गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड फॉर्म में. नाउ फ्रेश वाटर. Since water came to be found on the earth, its total volume has remained the same. The quantity of water only changes in its three states. For example, during the ice ages, more water was found in solid state. और अगर आप देखोगे hot region में तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी आपको liquid में दिखेगा. And the following 2 points would indicate how we use this precious resource or fresh water. हमारे पास सिर्फ 1% टोटल वॉल्यूम में से फ्रेश वाटर अवेलेबल है. अब इस फ्रेश वाटर को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं? फर्स्ट इज ह्यूमन नीड वाटर. Human need for water is rising at a faster rate than the rate of population. जो ह्यूमन की डिमांड है पानी के लिए वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है. This need has almost doubled in just 25 years between 1975 and 2000. 25 साल में जो पानी की डिमांड है वो ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है. Next is a lot of fresh water is needed for industrial activities. इतने सारे इंडस्ट्रीज़ हैं कंट्री में, वर्ल्ड में, कि उनको फुलफ़िल करने के लिए बहुत सारा फ्रेश वाटर की नीड होती है. इंडीड इंडस्ट्रियल यूज़ ऑफ फ्रेश वाटर इज़ मोर देन अदर यूजेस इन द डेवलप्ड कंट्रीज़ एंड इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया. इसीलिए बहुत सारी कंट्रीज़ में फ्रेश वाटर की नीड होती है. तो इंडस्ट्री में जो वाटर है, फ्रेश वाटर है, उसको सोच समझ के यूज़ करना चाहिए. नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर. फ्रेश वाटर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है अलग अलग पार्ट में. सरफेस वाटर एंड सेकेंड इज ग्राउंड वाटर. सरफेस वाटर जो हमें अर्थ की सरफेस पर अवेलेबल है फ्रेश वाटर, जैसे आइस शीट की फॉर्म में, या फिर जो हमारे लेक्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, उनमें जो अवेलेबल है दैट इज़ सरफेस वाटर, जो कि रेनफॉल के कारण फिल हो जाता है. एंड सेकंड है ग्राउंड वाटर, जो अर्थ के अंडर, अर्थ सरफेस के अंडर जो अवेलेबल है दैट इज ग्राउंड वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेल्स एंड ट्यूबवेल्स. नाउ डिड यू नो the level of groundwater below the earth's surface is known as water table. It varies from season to season and from place to place. जो ग्राउंड के नीचे जो पानी होता है that is called water table, और season to season और place to place जो इसका लेवल है वो चेंज होता रहता है. Now groundwater get polluted by seepage from landfills, septic tanks and underground tanks filled with oil, chemicals or hazardous waste dumps. Lead, which is harmful for animals and humans, remains in groundwater permanently. Groundwater जो है वो भी fresh form of water है, लेकिन because of the landfill, septic tank, underground tanks जो हैं, oil tank हैं या chemical tank हैं, उनके कारण जो groundwater है वो भी पोल्यूट होता जा रहा है. नाउ व्हाट इज ट्रीटमेंट ऑफ वाटर? ट्रीटमेंट ऑफ वाटर इज़ वेरी इसेंशियल टू मेंटेन इट्स प्योरिटी. पानी को शुद्ध बनाए रखने के लिए, उसे प्योर बनाए रखने के लिए उसके ट्रीटमेंट की, यानी उसको साफ करने की बहुत आवश्यकता है. Filtration and sedimentation should be followed by disinfectant the water with chlorine. Drinking water can be obtained by several purification methods such as reverse osmosis method, जो कि हमारे घरों में जो फिल्टर लगे हुए हैं, RO लगे हुए हैं, उस मेथड से काम करते हैं. Next is UV method, that is ultraviolet radiations to kill bacteria, viruses and fungi. Next is distillation and third is filter method. Water is a renewable resource. Recycling of water, if done at the source of contamination, is the best way of removing impurities according to needs. The waste treatment being very expensive, and recycling is considered an affordable proposition, especially when water is to be used by industrial plants. इसीलिए जो वेस्ट ट्रीटमेंट है वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है. तो सबसे सही मेथड जो है वाटर को ट्रीट करने का दैट इज़ रिसाइकलिंग. नाउ नेक्स्ट इज प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी.
वर्ल्ड में बहुत सारे रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, जैसे मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड एंटायर ऑस्ट्रेलिया आर फेसिंग shortage of fresh water supply. Countries located in drought prone areas are most susceptible to face great problems of water scarcity. ऐसी कंट्रीज जहाँ पर ड्रॉट जो है यानी सूखा बार बार आता है, ऐसी जगह पर पानी की बहुत कमी है. According to Falken Mark, a Swedish expert, water stress occurs when water availability is less than 1000 cubic meter per person per day. कब होती है पानी की कमी? जब पर पर्सन 1000 cubic meter पानी भी अवेलेबल ना हो पाए. Now, how to conserve water resources? First is surface runoff can be slowed down by forest and other vegetation cover to improve underground storage. ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस पर क्या करना चाहिए? प्लांटेशन करनी चाहिए. इसीलिए जो फॉरेस्ट जहाँ ग्रो होते हैं, जहाँ पर वेजिटेशन ग्रो होती है, वहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर जो है वो कम से कम स्टोर रहता है हमारे पास. वाटर कैन ऑल्सो बी इम्पाउंडेड बाय मेकिंग चेक डैम्स. हम चेक डैम्स बना सकते हैं ताकि पानी ओवरफ्लो ना हो. रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक शुड बी यूज्ड. जब बारिश होती है उस पानी को हम प्रिजर्व कर सकते हैं और उस पानी को यूज कर सकते हैं. दैट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग. मैक्सिमम वाटर इज यूज्ड फॉर इरिगेशन क्रॉप्स. ओवर इरिगेशन नीड्स टू बी अवॉइडेड. सीपेज लॉसेस फ्रॉम कैनल्स कैन बी मिनिमाइज्ड बाय लाइनिंग देम. मैक्सिमम जो वाटर इरिगेशन है टू द क्रॉप्स वो कैसे होनी चाहिए? वो रिड्यूस होनी चाहिए ताकि ओवर इरिगेशन नीड टू बी अवॉइडेड, यानी ज़्यादा इरिगेशन पानी जो है वो ज़्यादा वेस्ट ना हो. नेक्स्ट इज स्प्रिंकलर्स आर वेरी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट टूल्स ऑफ इरिगेशन. इवन अंडुलेटिंग लैंड्स आर इरिगेटेड प्रॉपरली. स्प्रिंकलर मेथड जो कि आप पिक्चर में देख सकते हो, फुहारे द्वारा जो खेती होती है, इरिगेशन होती है, दैट इज द मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव वे ऑफ इरिगेशन. नेक्स्ट इज इन ड्राई रीजन्स वेयर द एवापोरेशन रेट इज वेरी हाई, ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन इज वेरी यूजफुल. वाटर इज अप्लाइड टू प्लांट रूट्स थ्रू अंडरग्राउंड पाइप्स. ड्राई रीजन्स जो होते हैं जहाँ पर एवापोरेशन बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पर ड्रिप या ट्रिकल इरिगेशन बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है. वाटर जो है वो प्लांट की रूट्स तक थ्रू अंडरग्राउंड पाइप्स पहुँचाया जाता है. नाउ डिड यू नो? तरुण भारत सिंह, a voluntary organization has built johars or small dams to harvest water in Alwar district of the desert state of Rajasthan. राजस्थान की अलवर डिस्ट्रिक्ट में तरुण भारत सिंह एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड की है जिन्होंने वहाँ जोहड़ और छोटे छोटे डैम्स का निर्माण किया है ताकि वाटर हार्वेस्टिंग वहाँ पे की जा सके. In industries, recycled water may be used for cooling purposes. Effluents should be treated before disposing them. इंडस्ट्रीज़ जो हैं वहाँ पर जो वाटर यूज़ होता है मोस्टली रिसाइकल्ड वाटर जो है वो यूज़ करना चाहिए. नेक्स्ट इज इन डोमेस्टिक यूज़ वेस्टेज ऑफ वाटर शुड बी चेक्ड. वेस्ट वाटर ऑफ किचन may be used for gardens. Every individual needs to economize water use. In many parts of India, water is brought for daily use from long distances. It is going to be a problem in other parts as well, sooner or later, if we do not learn to conserve and make the best use of water available to us. डोमेस्टिक यूज़ यानी कि घरेलू यूज़ में हमें पानी के वेस्टेज को कम करना चाहिए. जैसे जो किचन में वेस्ट वाटर होता है उसको हम गार्डन्स में प्लांट की इरिगेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं. हर एक घर के जो मेंबर हैं सबको पानी की वेस्टेज कम करनी चाहिए. पानी के यूज़ के बारे में उन्हें पता होना चाहिए क्योंकि ज़्यादातर जो मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया हैं वहाँ पर पानी बहुत दूर दूर डिस्टेंसेस से भी लाया जाता है क्योंकि पीने का पानी उन्हें काफ़ी दूर से डिस्टेंस से लाना होता है. तो अगर ये पानी का हम सोच समझ के यूज़ नहीं करेंगे तो वाटर एक प्रॉब्लम बन जाएगी और वाटर अवेलेबल हमारे लिए वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत मुश्किल हो जाएगी.
Now come to the next topic, that is natural vegetation and wildlife resources. Natural vegetation and wildlife exist only in the narrow zone of the contact between the lithosphere, hydrosphere and atmosphere that we call biosphere. Natural vegetation or wildlife exist only in the narrow zone of contact जहाँ lithosphere, hydrosphere और atmosphere जहाँ पर ये तीनों लेयर मौजूद हैं, यानी कि बायोस्फीयर में ही नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है. All things are interrelated and interdependent on each other for survival in the biosphere. The interlinkage and interdependence of all plants and animals in an area is called ecosystem. और एक एरिया में जो इंटरलिंकेज और इंटरडिपेंडेंस है, जितने भी प्लांट और एनिमल ये आपस में एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, तो दिस इज कॉल्ड, दिस मेक्स इकोसिस्टम. Both vegetation and wildlife fulfill our various needs. Wood barks, leaves, rubber, dyes, food, fuel, fruits, nuts, latex, turpentine, oil, gum, medicinal plants and paper all are given by the plants. They provide shelter to animals, help in storage of underground water and check floods and soil erosion. Now wildlife includes animals, birds, reptiles, insects and aquatic life forms. They provide us with milk, meat, wool and hides. Insects जैसे कि bees है, हमें honey मिलती है and help in pollination of flowers and microorganisms play the role of decomposers. इस तरीके से जो plants हैं और वाइल्ड लाइफ हैं उन पे ह्यूमन बीइंग डिपेंडेंट है और ये तीनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं. नाउ व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी इज द वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना इन एन एरिया. एक एरिया में कितना फ्लोरा एंड फोना है, यानी कैसी वेजिटेशन और कैसी वाइल्ड लाइफ है, दैट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी. द ग्रेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्पीसीज नोन एज बायोडाइवर्सिटी. इट इज क्वाइट एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ. Plants produce their own food and get energy from the sun. When animals eat plants, energy is transferred from plants to plant-eating animals. The plant-eating animals may then be eaten by the flesh-eating animals, including man. This way, energy travels from one organism to another organism. This feeding transfer is known as food chain. It is imperative to protect this biodiversity in the ecosystem. और इकोसिस्टम ये बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए मेन चीज़ है फूड चेन. फूड चेन जो है ये प्रॉपर बैलेंस होनी चाहिए, तभी बायोडाइवर्सिटी मेंटेन हो सकती है. नाउ व्हाट इज फूड चेन? जैसे कि सॉइल से प्लांट्स ग्रो होते हैं, ठीक है. प्लांट्स को कौन खाते हैं? एनिमल्स या बर्ड्स, जो भी प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैं वो खाते हैं. और जो एनिमल्स होते हैं उनको कौन खाते हैं आगे? जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैं जिसमें मैन भी इंक्लूड है, वो उनको खाते हैं. इस तरीके से जो उनके स्पीसीज हैं वो एक प्रॉपर बैलेंस में रहती हैं. दिस इज कॉल्ड फूड चेन. नाउ व्हाट इज इकोसिस्टम? Ecosystem is the physical environment comprising of the biological environment. Life is found in two type of ecosystem. First is marine ecosystem and second is टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. मैराइन इकोसिस्टम जो कि पानी में समुद्री जीव जो होता है, पानी का जो इकोसिस्टम है दैट इज कॉल्ड मैराइन. Oceans occupy 71% of the earth's surface. The marine ecosystem are larger than terrestrial ecosystems. Life emerged first in the oceans. It then got diversified into several species. Life in marines is also very complicated and is found even in the deepest parts of the ocean. 71% क्या है अर्थ पे? वाटर है, यानी मैराइन लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. नाउ व्हाट इज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम? जो लैंड पर जो लोग रहते हैं, लैंड पर जो सर्वाइव करते हैं, दैट इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, दैट इज फॉरेस्ट, grasslands and semi deserts and deserts. Now first is forests.
The vegetation of the world is divided on the basis of type of forest. Now, chief characteristic of forest ecosystem are the most productive part of trees in forest are leaves. सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्टिव पार्ट होता है ट्रीज का वो क्या होता है? लीव्स होता है. लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस or the plant food contain the sun's energy which travel to other species of life on land. और photosynthesis का प्रोसेस कैसे हो पाता है? with the help of sun heat, sun energy. इस तरीके से जब वो लीफ दूसरे ह्यूमन बीइंग या कोई भी खाता है तो इस तरीके से सन एनर्जी जो है वो अदर स्पीसीज में ट्रेवल करती है. नाउ नेक्स्ट इज द फॉरेस्ट इज इन्फ्लुएंस्ड by and adapted to particular physical conditions and climate. फॉरेस्ट डिपेंड करते हैं कि वहाँ की पर्टिकुलर फिजिकल कंडीशन क्या है, कैसी वहाँ की सॉइल है, किस टाइप का वहाँ इन्वायरमेंट है और कैसा क्लाइमेट है. Forests are home to animals and plants. This great variety of animals and trees in forest is called biodiversity. फॉरेस्ट जो हैं ये होम का काम करते हैं फॉर द एनिमल्स एंड प्लांट्स और ये ग्रेट वेराइटी ऑफ एनिमल और ट्रीज जो है इसी को कहते हैं बायोडाइवर्सिटी. फॉरेस्ट आर जनरली लोकेटेड वेयर वाटर सप्लाई इज एडिक्वेट विद ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ट्री ग्रोथ. और फॉरेस्ट कहाँ होते हैं? फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पर पानी की सप्लाई एडिकेट अमाउंट में हो और जहाँ का टेम्परेचर भी एवरेज हो ताकि वहाँ पर ट्री ग्रो कर सकें. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज टाइप ऑफ फॉरेस्ट. जहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है वहाँ पर बहुत बड़े बड़े भारी मात्रा में ट्रीज पाए जाते हैं. द फॉरेस्ट आर थस एसोसिएटेड विद एरियाज हैविंग अबंडेंट वाटर सप्लाई. इसका मतलब जहाँ पर पानी ज़्यादा होता है वहाँ पर क्या होंगे? फॉरेस्ट भी ज़्यादा होंगे. एज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीजेज द साइज ऑफ ट्रीज एंड देयर डेंसिटी रिड्यूसेज. अगर पानी कम होगा तो उतना ही जो ट्रीज हैं, साइज ऑफ ट्रीज और उनकी डेंसिटी जो है, जो घने जंगल हैं वो क्या होते जाएंगे? रिड्यूस होते जाएंगे. जहाँ पर मॉडरेट रेनफॉल होती है वहाँ पर शॉर्ट स्टेंटेड ट्रीज एंड ग्रासेस ग्रो करते हैं एंड दे आर कॉल्ड द ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड. और ड्राई रीजन जो होते हैं, जो लो रेनफॉल के एरिया होते हैं वहाँ पर थॉर्नी श्रब एंड स्क्रब ग्रो करते हैं. टुंड्रा वेजिटेशन ऑफ कोल्ड पोलर रीजन कंप्राइजेज मॉसेस एंड लिचन्स. नाउ फॉरेस्ट आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज evergreen and deciduous depending on when they shed their leaves. evergreen forest जो कभी भी अपनी लीव शेड नहीं करते, यानी एक साथ किसी सीजन में लीव शेड नहीं करते, इसलिए वो हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं. deciduous forest कौन से होते हैं? जो एक पर्टिकुलर सीजन में सारे ट्री जो हैं अपनी लीव्स को छोड़ देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, that are deciduous forest. these forests are further classified as tropical or temperate based on their location in different latitudes. Today, there are many more people in the world than there were 2 centuries back. To feed the growing numbers, large areas of forest have been cleared to grow crops. Forests cover all over the world and vanishing rapidly. There is an urgent need to conserve this valuable resource. और आज की जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उस पॉपुलेशन की नीड को पूरा करने के लिए जो फॉरेस्ट हैं उनको क्लियर किया जा रहा है ताकि बढ़ती हुई पॉपुलेशन के सेटलमेंट के लिए हम उन्हें जगह प्रोवाइड कर सकें. लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्दी जो फॉरेस्ट हैं वो वर्ल्ड से गायब हो जाएंगे. इसीलिए हमें इन्हें वैल्यूएबल रिसोर्स को कंजर्व करना चाहिए. नाउ नेक्स्ट इज ग्रासलैंड्स. Grasslands are significant habitats of a great variety and a great diversity of animal life. Grasslands जो हैं वो significant habitats of a great variety and great diversity of animal life provide करते हैं. The grasslands are located in 2 main latitudinal zones, tropical and temperate. Tropical grasslands जिनको savanna कहते हैं and are found in East Africa. और जो temperate grasslands हैं they are having different names in different continent. जैसे साउथ अफ्रीका में वेल्ड के नाम से जाने जाते हैं, नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज एंड सो ऑन. नेक्स्ट इज सेमी डेजर्ट एंड डेजर्ट्स. There are 2 types of desert, semi-desert and desert. Both category include hot and cold desert. Now what are semi-desert?
they have thorny bushes and shrubs and are found in hot semi-desert और semi-arid areas. और deserts क्या होते हैं? जहाँ पर बहुत कम rainfall होती है. Hot deserts like that of Sahara and Arabia and cold desert like that of Gobi and Ladakh are characterized by plants of low growth and organisms living below the ground. So these are the deserts. Now next is disturbances in natural ecosystem. Growing population and human activities are causing great disturbances. The balance in natural ecosystem is being affected in the following ways. First, human beings alter natural environment to meet their own needs. जो ह्यूमन बीइंग है वो नेचुरल एनवायरनमेंट में बार बार कुछ ना कुछ अफेक्ट ऑल्टर करते रहते हैं, चेंजेस करते रहते हैं अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए. नेक्स्ट इज फॉरेस्ट आर क्लियर फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड सेटलमेंट्स. ग्रोइंग पॉपुलेशन की नीड को पूरा करने के लिए फॉरेस्ट को क्लियर किया जा रहा है. एक्सोटिक स्पीसीज हैव स्टार्टेड प्रूविंग हार्मफुल टू नेटिव प्लांट्स एंड एनिमल्स. एक्सोटिक स्पीसीज जो हैं, जो नेटिव स्पीसीज नहीं हैं, वो नेटिव प्लांट्स और एनिमल्स के लिए हार्मफुल साबित हो रही हैं. पोल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग हैव अफेक्टेड द इकोसिस्टम टुडे. पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो इकोसिस्टम है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है. पोचिंग एंड हंटिंग हैव रिड्यूस द नंबर ऑफ एनिमल्स. पॉचिंग और हंटिंग, उससे जो एनिमल्स हैं उनकी संख्या बहुत कम होती जा रही है. नाउ डिड यू नो the first Earth Summit held at Rio de Janeiro in Brazil in 1992 and the second Earth Summit held at Johannesburg in South Africa 2002 highlighted the need to protect the ecosystem. और इसीलिए ये अर्थ समिट हुए हैं ताकि सारी कंट्रीज, वर्ल्ड नेशंस जो हैं वो आपस में बैठ के सलाह मशवरा कर सकें कि कैसे हम इकोसिस्टम को कंजर्व कर सकते हैं, कैसे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. नाउ कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम. Government and the United Nations have passed laws against deforestation and killing of animals. Laws जो हैं और भी पास किए जा रहे हैं ताकि पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके. बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्रिएट की जा रही हैं ताकि जो एनिमल और बर्ड है वो नेचुरल हैबिटेट में रह सके बिना किसी डर के. All these efforts are still very inadequate. Human impact on natural environment is felt through a number of ways. To prevent alterations and modifications of ecosystem, many more measures are needed. Otherwise, disturbances in balance would have serious consequences. अगर हमने ये बैलेंस नहीं किया इकोसिस्टम को, ये मॉडिफिकेशन और ऑल्ट्रेशन बंद नहीं की इकोसिस्टम के साथ, तो क्या होगा? ये डिस्टर्बेंसेस जो हैं ये बहुत ज़्यादा सीरियस इम्पैक्ट इसके हमारे लाइफ में हो सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज वाइल्ड लाइफ एंड रिसोर्सेज. Organisms in a given biome are known as wildlife, and there is a close relationship between animal life and vegetation in a region. एक एरिया के एनिमल लाइफ और वेजिटेशन में बहुत क्लोज रिलेशन होता है. क्यों? क्योंकि वेजिटेशन जो है दैट प्रोवाइड द फूड एंड सुटेबल हैबिटेट फॉर एनिमल लाइफ. So animals move from place to place. Each species can thrive to a limited range of climatic conditions. Their physical build, color, eating habits, etc. are adapted to their environment. Each forest type is identified by a particular species of वाइल्ड लाइफ. तो हर एक फॉरेस्ट जो है उसमें अलग अलग टाइप की आपको स्पीसीज मिलेंगी वाइल्ड लाइफ की देखने को, क्योंकि कैसी वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन है उसी अकॉर्डिंग वहाँ के जो वाइल्ड लाइफ है उनका कलर या फिर उनकी फिजिकल बिल्ड या फिर ईटिंग हैबिट उसी के अनुसार होता है. Wildlife refers to a variety of life forms, birds, fish, reptiles and other animals that live together in the natural surroundings. Wildlife ranges from the single-celled amoeba to large elephant and giraffe. Wildlife का क्या मतलब है? Single celled है amoeba से लेकर large elephant and giraffe तक, though all are included in wildlife. The habitat provides space for normal growth,
movement, food and water, breeding and raising the young ones and providing them safe shelters. Now, wildlife in India. Our wildlife, or the so-called fauna, is very rich and varied. It consists of fish, birds and animals including amphibians. Amphibian क्या होते हैं? ऐसे एनिमल जो लैंड पर भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं. Reptiles, mammals, small insects and worms. There are about 89,000 species of fauna. The mammals include elephants. Elephants कहाँ कहाँ होते हैं? असम, Kerala, Karnataka. Camels and wild asses that are found in arid areas of Rajasthan and Rann of Kutch. Rhinoceros जो असम और नॉर्थ वेस्ट बंगाल में आपको मिलेंगे. इंडियन बाइसन्स, बफेलोज, नीलगिरी और इस तरीके की बहुत सारी वाइल्ड लाइफ हमारे पास हैं. एंड टाइगर्स जो कि सुंदरबन इन बंगाल में हमें मिलते हैं. एंड उसके अलावा लेपर्ड है जो कि अलग अलग हिमालय के रीजन में हम देख सकते हैं. The Himalaya ranges are the home of several interesting animals such as wild sheep, mountain goats and so on. इस तरीके से जो हिमालय है उसने भी काफ़ी वाइल्ड लाइफ को अपने हैबिटेट दे रखी है, उन्हें एक होम प्रोवाइड कर रखा है. इंडिया also has several species of monkeys such as langur, the lion-tailed macaw, etc. And there are also variety of birds found in different parts of India. The chief among them are peacocks, geese, pheasants, duck, maynas, pigeons and etc. They belong to both forest and wetlands. India also possesses 2,500 species of fish which dwell in lakes, rivers, seas and ocean. इस तरीके से टोटल वाइल्ड लाइफ यानी अमीबा से लेकर एलिफेंट, जिराफ तक हमारे पास इंडिया में 89,000 ऑफ वाइल्ड लाइफ आप प्रजातियां देख सकते हो. नाउ डिड यू नो the difference between a cheetah and a leopard is that the cheetah has spots on its body while the leopard has roseate. And also the cheetah has tear mark on its face which is missing on the face of a leopard. This is the difference between a cheetah and a leopard. And our national animal is tiger and our national bird is peacock. Next is depletion of wildlife. डेप्लेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ मीन्स कैसे जो इतनी स्पीसीज हमारे पास हैं वो धीरे धीरे डेप्लीट होती जा रही हैं, ख़त्म होती जा रही हैं. ड्यू टू द राइज ऑफ पॉपुलेशन देयर हैज़ बीन अ डिमांड फॉर लैंड लीडिंग टू अ क्लैश बिटवीन वाइल्ड लाइफ एंड ह्यूमन. पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो उनको रहने के लिए जगह चाहिए, तो एक क्लैश आ गया है वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन के बीच में. अब the wildlife was the obvious loser and some wild animal even became extinct. Today 77 mammals, 21 reptiles, 40 species of birds and 3 amphibians are threatened with extinction जो कि बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं. Tiger, lion, Thamin of Manipur and Hangul of Jammu and Kashmir, wild ass of Kutch, snow leopard etc. are in the endangered list of wild animal जो कि ख़त्म होने वाले हैं. Not only wild animals but wild plants are also facing the threat of extinction. वाइल्ड प्लांट जो है उनको भी खतरा है लुप्त होने का. About 450 plant species are known to be endangered, threatened or rare. In the past couple of centuries, flora and fauna are depleting due to following reason. First is destruction of habitats. रहने की जगह ही उनकी नहीं रहेगी तो वो कहाँ रहेंगे. मैन्स एक्टिविटीज़ के कारण फॉरेस्ट को क्लियर किया जा रहा है जिसके कारण उनका जो होम है, जो शेल्टर है, वो उनसे छीना जा रहा है या उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है. नेक्स्ट इज रैपिडली राइजिंग पॉपुलेशन. पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है जिसकी वजह से एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक्सपेंड किया जा रहा है जिसके लिए फॉरेस्ट को क्लियर किया जा रहा है. दैट इज़ द सेकेंड रीज़न. एंड थर्ड इज डिजीज एंड पेस्ट्स. Cause like pollution, contact with exotic flora and fauna, use of fertilizers and chemicals in agriculture, acid rain, damage of soil resources and changes in climate. इन सब चीज़ों से flora and fauna जो है वो डिक्लाइन होती जा रही है. Next is depleting food resources.
Most animals and even plants are facing extinction on account of depleting food resources. कि food resources उनके लिए ख़त्म होते जा रहे हैं, तो बहुत सारे एनिमल और जो प्लांट्स हैं वो लुप्त होने की कगार पर हैं. Now, significance of forest and wildlife. फॉरेस्ट हमारे लिए, वाइल्ड लाइफ हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट इज बायोमास. फॉरेस्ट आर द ग्रेटेस्ट रिजर्व ऑफ बायोमास ऑन द अर्थ, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ फूड चेन. फूड चेन जो कि इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए बहुत ज़रूरी है, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ जो कि मेंटेन हो पा रहा है. दैट इज नोन एज बायोमास और बायोस्फीयर. नेक्स्ट इज स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन. फॉरेस्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द अर्थ. एंड डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना. इतनी सारी जो हमारे पास फ्लोरा एंड फोना की डाइवर्सिटी है, इतनी वैरायटी है इंडिया में, वो कैसे है? बिकॉज ऑफ द फॉरेस्ट एंड द वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. एंड नेक्स्ट इज रिसोर्स वैल्यू. Varieties of products like paper, herbal medicines, fruits, flowers, turpentine, lac, oil, honey, sandal and perfume. इतने सारी वैल्यूएबल चीज़ें जो हैं ये प्लांट से हमें मिलती हैं, जो कि हमें फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट इज इकोलॉजिकल वैल्यू. Trees in forest are the basis for the survival of life on the earth. Trees consume carbon dioxide इन द एयर एंड गिव आउट ऑक्सीजन. और ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसी के कारण हम ब्रीथ कर पा रहे हैं. तो फॉरेस्ट जो हैं ये हमारे लिए इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अब इतने इम्पॉर्टेंट चीज़ों को क्या हमें कंजर्व करना चाहिए? यस. नाउ फॉरेस्ट कंजर्वेशन. In the past, there has been an immense destruction of India forest. It was because we were ignorant about the consequences of the mistake. क्योंकि हमें नहीं पता था कि forest को हम destroy करके क्या mistake कर रहे हैं. Besides, rapid urban development, increasing population has also played a vital role in the shrinkage of forest. Now the government and the people, अब सबको पता है, सबने realize किया है कि forest हमारे लिए कितने important हैं, और बहुत सारे ऐसे डायनामिक प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं दैट आर नोन एज प्रोग्राम ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन. अंडर द स्कीम ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन क्या क्या देखा जा रहा है? प्रिवेंशन ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट. जो अंधाधुंध फॉरेस्ट की कटाई हो रही है, पेड़ों की कटाई हो रही है, उसको प्रिवेंट किया जाए. प्रिवेंशन और कंट्रोल ऑफ फॉरेस्ट फायर. फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल और प्रिवेंट किया जाए. कंडक्टिंग रिसर्च टू प्रिवेंट डिजीज ऑफ ट्रीज एंड टू मेक द फॉरेस्ट मोर प्रोडक्टिव. ट्रीज में जो डिजीज होती हैं उनकी अच्छे से स्टडी की जाए और फॉरेस्ट को मोर प्रोडक्टिव कैसे बना सकते हैं उस पर रिसर्च किया जाए. प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द रिजर्व फॉरेस्ट. रिजर्व फॉरेस्ट में वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करना, ये भी इन गवर्नमेंट स्कीम्स के अंडर आता है. डेवलपमेंट ऑफ एनवायरमेंटल एंड सोशल फॉरेस्ट्री. कैसे एनवायरमेंटल एंड सोशल फॉरेस्ट्री को मेंटेन करना है, कैसे डेवलप करना है, ये भी सारा गवर्नमेंट ने जो स्कीम्स लॉन्च की हैं इनके अंडर ये मेजर्स आते हैं ताकि फॉरेस्ट को हम कंजर्व कर सकें. नाउ देयर इज़ अ केस स्टडी अबाउट प्रोजेक्ट टाइगर. प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? जो टाइगर की स्पीसीज़ हैं वो क्या होती जा रही है? एक्सटिंक्ट होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही हैं. उनको बचाने के लिए गवर्नमेंट ने एक मिशन शुरू किया है, दैट इज़ प्रोजेक्ट टाइगर. एंड a country which boasted of more than 40,000 tigers just a century ago is today searching for tigers in its 28 tiger reserves. जहाँ पर एक सेंचुरी पहले 40,000 से भी ज़्यादा टाइगर थे, लेकिन अब 28 टाइगर रिजर्व्स बने हुए हैं, उसमें टाइगर को सर्च करना पड़ता है. द फर्स्ट एवर एफर्ट टू सेव टाइगर्स वॉज मेड बाय मिसेस इंदिरा गांधी बाय imposing a ban on tiger hunting in 1970. फर्स्ट टाइगर को बचाने की जो मुहिम थी वो इंदिरा गांधी जी ने शुरुआत की थी 1970 में, जब टाइगर हंटिंग को बैन कर दिया गया था. उसके बाद और बहुत सारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आए, दैट इज़ 1972. उसके बाद उसकी अमेंडमेंट आई 1973 एंड 4 में प्रोजेक्ट टाइगर, जिसमें टाइगर्स को मेनली प्रिजर्व करने के लिए हंटिंग को बैन किया गया और लोगों से रिक्वेस्ट की
गई ताकि वो जो फॉरेस्ट है उनकी अंधाधुंध कटाई ना करे। गवर्नमेंट इन चीज़ों का ध्यान दे ताकि जो लुप्त होती जा रही है वाइल्ड लाइफ उनको प्रिजर्व किया जा सके। नाउ कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। As many as 11 biosphere reserves have been set up starting from Nilgiri Hills along the borders of Kerala, Tamil Nadu and Karnataka to Nanda Devi in the north in Himalayas. There are such reserves around Manas and Kaziranga in Assam, Sundarbans in West Bengal and Rann of Kutch in Gujarat. Each biosphere reserve is a very large area at the center of which both the diversity of plants and animals are preserved in its wild land. और इतने सारे नॉर्थ से लेके साउथ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक इतने सारे बायोस्फीयर बनाए गए हैं, इतने सारे नेचुरल रिजर्व बनाए गए हैं ताकि जो वाइल्ड लाइफ है उसकी प्रोटेक्शन हो सके। इंडिया में 84 नेशनल पार्क्स हैं एंड 447 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं ताकि होम्स ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल वो अपने नेचुरल हैबिटेट की तरह वहाँ पर रह सकें। More attention is now being paid to conserve 15 mangrove forest areas, 4 coral areas close to the group of our islands and 6 wetlands along our rivers and lakes such as the Volar, Longtek, Chilika, Sambhar, Harik in Punjab and Kyoledo National Park near Bharatpur in Rajasthan. Beside all these protected areas, there are 200 zoological parks and gardens for keeping wildlife animals, for studying their needs and for making people aware of their importance. और इतने ज़्यादा गवर्नमेंट ने इतने ज़्यादा बायोस्फीयर, जूलॉजिकल पार्क, नेशनल पार्क बनाए हुए हैं ताकि लोगों को इनकी इम्पोर्टेंस रियलाइज़ करा सके। Many countries have passed laws declaring that the trades as well as killing of birds and animals are illegal. बहुत सारी कंट्रीज़ ने हंटिंग पर या फिर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ एनिमल्स एंड किलिंग ऑफ बर्ड पर बैन लगा दिया है, उसे इलीगल घोषित किया है। इन इंडिया किलिंग ऑफ लायंस, टाइगर्स, डियर्स, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स एंड पिकॉक्स हैव बीन बैन्ड। An international convention cites, that is the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, has been established that lists several species of animals and birds in which trade is prohibited, and conservation of plants and animals is an ethical duty of every citizen. हर एक citizen की ड्यूटी है वो अपने प्लांट स्पीसीज और एनिमल स्पीसीज को प्रोटेक्ट करके रखे ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए वो लुप्त ना हो। नाउ कम टू द की पॉइंट्स। Land, soil and water are the 3 major natural resources. They are essential for our survival. Land has various features like mountains, plateaus, plains and deserts. Overexploitation of land resources and concentration causes land degradation, landslide, soil erosion and desertification. Soil forms the uppermost layer of the earth crust. Water is a vital renewable natural resource. And the most important use of fresh water is for drinking and irrigation. And biodiversity is the variety of flora and fauna in an area. Now, biosphere reserves, national parks and wildlife sanctuaries have been set up for the protection of natural vegetation and wildlife. And the last, conservation of plants and animals is an ethical duty of every citizen. Now this is the chapter. I hope बच्चों आप सबको ये समझ आया होगा। फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे।